Hello everyone, welcome back to Super Kalam. I am your teacher Arpita and today we are going to decode this week's the most important articles from the Hindu newspaper. As you all know that we have been running our mains answer writing initiative wherein daily at 8 p.m. we are discussing answers on one important article from the Hindu newspaper. तो इसलिए वहाँ तो काफ़ी important articles cover हो जाते हैं, but here the remaining articles are covered in this weekly news analysis. This is going to be a really interesting class. Make sure that you take out your registers and also take quick notes simultaneously in the class. Do not forget कि after this session the notes will also be shared on Telegram, but you do not have to just save the notes, but you have to revise. आज अपने backlogs आपको cover करने हैं. Let's get started. The very important article which has been doing the headlines is the Wayanad landslide, the destructive landslide. It is said almost everyone in that zone they were part of casualties. So it is one of the most horrific incident that has taken place and this is going to be important. Now यहाँ पर ना लैंडस्लाइड पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है. देखो लैंडस्लाइड बेसिकली इज अ जीएस पेपर वन फिनोमेना, बट बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट इसके अंदर आ जाता है तो ये पेपर थ्री का भी पार्ट हो जाता है. वेन एवर यू स्टार्ट अ न्यूज पेपर रीडिंग, make sure that you categorize the articles gs paper wise. For that you have to keep in mind the syllabus. If you are thorough with the syllabus, then it becomes really easy to identify which article is important from the perspective of your exam. Now, related to this particular article, we know that Wayanad currently it has been dealing with this deadly landslide disaster, and in there has been a landslide atlas of India which has been prepared by the National Remote Sensing Center, which is a unit of ISRO. तो यहाँ पर ना एक और consecutive article आया था about Wayanad ranking fifth in Kerala on the ISRO's landslide atlas. अब यहाँ पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, let us make a note of it. Okay. So when we talk about this important point, एक important aspect हो जाता है that there is a landslide atlas of India. Landslide atlas of India. अब यहाँ पर इसी के साथ एक और important aspect आ जाता है which is prepared by, कौन prepare करेगा इसको? So write it down. It is prepared by the National Remote Sensing Center which is a unit of ISRO. तो ये किसका unit है? Unit of ISRO है. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. अब इसको प्रिपेयर कब किया गया था? इट वॉज प्रिपेयर्ड इन 2023. और इसके अंदर अगर हम वायनाड की बात करें तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लैंडस्लाइड यहाँ आया है तो वायनाड को रैंकिंग इसके अंदर मिली है. तो यहाँ पर आप देखोगे वायनाड इज रैंक्ड 13th टोटली इन इंडिया, बट अगर हम केरला में देखें तो वायनाड रैंक्ड 5th इन केरला. ओके, सो देर हैव बीन अमंग 147 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको रैंकिंग दी गई है, जिसमें से वायनाड की रैंकिंग 13th है और केरला में अगर देखें तो इसकी रैंकिंग 5th है. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. ऐसे ही थिरुसर, पल्लाकड़, मल्लापुरम, कोझिकोडे, दे हैव आल्सो गिवन रैंक्स लाइक 3rd, 5th, 7th एंड 10th. अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, ये क्या है? So basically it is prepared by National Remote Sensing Center. It also covers, write it down, it covers the details of landslides, the details of landslide occurrences. ठीक है, and also the damage assessments will help us in understanding the next step of mitigation. यही इंपॉर्टेंस हो जाता है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया का. अभी अगर हम इसकी की फाइंडिंग्स देखें तो वी हैव उत्तराखंड, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स पाए गए हैं इन द टाइम पीरियड ऑफ 1998 to 2022. एंड मिजोरम हैज टॉप द लिस्ट बाय द वे. पास्ट 25 ईयर्स में देखें तो 12,300 के आसपास लैंडस्लाइड्स मिजोरम में देखे गए हैं. ओके, उत्तराखंड की फ्रेजिलिटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हैं सिंस उत्तराखंड हैज आल्सो बिकम वेरी फ्रेजाइल. द स्टेट हैज एक्सपीरियंस सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स सिंस द पीरियड ऑफ 1998. केरला में भी कंसिस्टेंटली मैसिव लैंडस्लाइड्स नोट किए जा रहे हैं, राइट. एंड द मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट इज, यहाँ पर आप देखो, रुद्रप्रयाग विच इज इन उत्तराखंड. इट हैज रैंक्ड फर्स्ट. ठीक है, अगर हम उत्तराखंड में देखें स्पेसिफिकली वेस्टर्न घाट्स, हिमालयन रीजन्स के एरिया के भी जो लैंडस्लाइड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है. नाउ हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, व्हाट इज इट? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ इसरो.
It is dedicated to satellite data acquisition. It acquires the data, processes it, disseminates it, and it plays a very important role in resource management, in environmental monitoring. तो ये बहुत ही important aspect है prelims के perspective से. They can definitely ask a question here. All right, coming on to the next important article. Here you can see it is about states can sub classify schedule caste for quota, says top court. यहाँ पर ना काफी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो आप निकाल सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, द ईवी चेन्नई केस where Supreme Court ruled that subclassification of scheduled caste was not possible. Scheduled caste के लिए एक homogeneous group तैयार, उस ग्रुप में उसको कैटेगराइज किया गया था. देन उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हेयर कैन बी द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. ओके, दैट इज आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 341. ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये आर्टिकल्स आपको याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी हैं. Then what is the significance of this verdict which Supreme Court has passed? Supreme Court ने बोला है कि जो सब कैटेगराइजेशन है ना क्लास के अंदर, जैसे शेड्यूल कास्ट है, इसके अंदर सब कैटेगराइज करना बेस्ड ऑन द इनकम एटसेट्रा, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट सो दैट वी कैन मेंटेन इक्वालिटी. ताकि हम सोशल पोजीशन जो है, सोशल पोजीशन के बेसिस पे लोग जज करते हैं वो ना हो सके. राइट, सो यहाँ पर देखते हैं वाई सब क्लासिफिकेशन. ध्यान से देखना, शेड्यूल कास्ट आर नॉट एन इनडिविजिबल मोनोलिथ. That is why subclassification, it is has to be done because based on income there is differences. They are composed of heterogeneous groups of caste. अब शेड्यूल कास्ट के अंदर एक ग्रुप नहीं है कास्ट का, डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट रेसेस एंड ट्राइब्स हैं, उनका बैकवर्डनेस का जो डिग्री है वो भी डिफरेंट है. राइट, और स्टेट्स उनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एक लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन, एक पैरामीटर यूज करके. स्टेट्स को उसके लिए डेटा भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने सब क्लासिफाई किया है. सो दिस इज अ 6:1 मेजोरिटी जजमेंट हुई है, पास हुई है. 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी जिसके हेड थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़. उन्होंने कहा दैट स्टेट्स हैव द राइट, दिस इज वेरी क्रूशियल, प्लीज अंडरलाइन इट, स्टेट्स have the right to subclassify scheduled caste notified in presidential list to provide them more preferential treatment in public employment and education to those who really deserve it. तो यहाँ पर क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल काफी उठकर निकलकर सामने आया है. 4 of the 7 judges on bench separately have said that government should extend the creamy layer principle to scheduled caste and scheduled tribes जैसे कि OBC कैटेगरी में लगता है. दैट मीन्स जरूरी है कि जो एफ्लुएंट इंडिविजुअल हैं, हु आर प्रिविलेज्ड और हु आर एफ्लुएंट, जो मॉनेटरीली काफी सिक्योर्ड हैं, ठीक है, दे हैव टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन सो दैट अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए वहां पर जगह बनाई जा सके. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट विच हैज कम आउट. तो इसको ना अलग से अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है. ठीक है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स GS पेपर 2 एज वेल. This is the creamy layer principle that you need to understand. Okay, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. बट यहाँ पर चैलेंजेस आएंगे. व्हाट विल बी द चैलेंजेस इन दिस सब क्लासिफिकेशन डन बाय द स्टेट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू मेक श्योर डेटा कलेक्शन सही हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ राइट एविडेंसेस. देन वी आर बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ एवरी ट्राइब, एवरी सब कैटेगरी. यूनिफॉर्मिटी वर्सेस डाइवर्सिटी का प्रिंसिपल यहाँ पर आ जाता है विच इज अगेन वेरी वेरी चैलेंजिंग. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये एडिटोरियल सुपर कलाम ने काफी अच्छे से समराइज किया था. प्रोपेलिंग द यूके एंड इंडिया स्टोरी. सो व्हाट इज हैपनिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है. इंडिया एंड यूके का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर IR GS पेपर 2 इवन इफ यू हैव पॉल साइंस एंड IR एज योर optional paper. From the Cold War era to the 2004 partnership to the signing of CSP, Comprehensive Strategic Partnership, which was signed in 2021, our relationship has deepened. यहाँ पर colonial era भी आ जाता है जो कि आप modern history में पढ़ते ही पढ़ते हो. ठीक है, जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था वो काफी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है जो पढ़ना जरूरी है NCM. नाउ करंटली व्हाट आर द चैलेंजेस विच इंडिया एंड यूके आर फेसिंग राइट नाउ? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स. रशिया के ऊपर अगर हम अपना स्टैंड देखें तो इंडिया का स्टैंड एंड यूके का स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट है. If we look at UK is more in proximity relationship wise with Pakistan or opinion wise with Pakistan. Then Khalistan के issue में देखें there are divergent issues, right? Plus हमारा long lasting anti colonial resentment to some extent है ही है.
Then another important point is, there is in the budget this time you must have come across this very important initiative जो हमने पढ़ा था, which was one sun one world one grid, OSOWOG, जिसमें इंडिया एंड यूके आर टुगेदर. दिस इज इंपॉर्टेंट. विच आर द एरियाज जहां पर हम साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं? एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है? इकोनॉमिक एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, क्लाइमेट रिलेटेड एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, डिफेंस सिक्योरिटी में हमारा कोऑपरेशन है. सो whenever there are, you are studying India's relationship with any other international nation, international arena, तो वहां पर these are the factors you have to study: history, challenges, areas of cooperation and the resentment, अगर कोई, if there is any difference of opinion. So that is how you have to utilize this particular editorial, because this editorial is about UK and India story, right? Now coming on to the next very important article, which is CPCB plans to check violations in plastic waste trading regime. अब यहाँ पर एक important aspect आ जाता है, whenever there is any body in news you have to study it. Prelims के perspective से important है. We have Central Pollution Control Board, that is CPCB. क्या है CPCB? Statutory organization है. What kind of organization? Statutory organization. September 1974 में it was constituted under the Water Act 1974. This is important. ये तीन चीजें लिख लीजिए. Then what is the function of CPCB? क्या काम करता है? It promotes cleanliness of streams, cleanliness of wells in different areas of states. It improves the quality of air. It tries to prevent air pollution in the country. That is the function, core function of CPCB. Okay, and here it is talking about it's planning to check violation in plastic waste trading regime. Plastic वैसे भी बैन करने की काफी जगह बात हुई है, still it is prevalent. ओके, तो इसने ना ईपीआर स्कीम की बात की है. ईपीआर स्कीम इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम, which mandates that businesses that use plastic packaging material to recycle a certain percentage of plastic used in the previous 2 years. कोई भी business which is using plastic packaging material, they have to mandatorily recycle it. लास्ट 2 साल में जो भी प्लास्टिक यूज किया उसको रिसाइकल करना होगा. दैट इज मैंडेटरी. इसको बोलते हैं ईपीआर स्कीम. ये यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब यहीं पर एक तो हमने एस्पेक्ट पढ़ लिया सीपीसीबी का. नाउ सेकेंड एस्पेक्ट इज द प्लास्टिक पोल्यूशन. तो प्लास्टिक पोल्यूशन क्या, क्या डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स के प्लास्टिक होते हैं, कहाँ से प्लास्टिक आता है. माइक्रो प्लास्टिक इज वेरी इन न्यूज. व्हाई इट इज इन न्यूज? बिकॉज माइक्रो प्लास्टिक इज बीइंग फाउंड इन द स्टमक ऑफ और इन द बॉडी ऑफ द मरीन ऑर्गेनिजम्स. नैनो प्लास्टिक आप देखो, दैट इज लीडिंग टू रिवर पोल्यूशन बिकॉज वी आर थ्रोइंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू द ओशन. Right? What are the international efforts which we are doing to remove plastic pollution? UNEP क्या कर रहा है, मार्पोल क्या कर रहा है, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी साइन हुई है, वो जरूरी है पढ़ना. Then another important aspect here is about the national efforts. What are we doing? तो उनमें से एक तो हो जाएगा ये EPR स्कीम, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम. दिस इज इंपॉर्टेंट. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, स्वच्छ भारत अभियान, तो इस बार भी बजट में भी इसको हाईलाइट किया गया था. सो दैट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? दिस इज हाउ दिस आर्टिकल हैड टू बी स्टडीड. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज हरिभाऊ किशन राव बागडे टेक्स ओथ एज राजस्थान गवर्नर. तो यहाँ पर तो ये टॉपिक मैंने बहुत बार पढ़ाया है आपको. सो अगेन हम इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं. हियर वी नीड टू स्टडी अबाउट आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 162, हाउ अ गवर्नर इज अपॉइंटेड. इसमें एम लक्ष्मीकांत बुक से हमने गवर्नर चैप्टर टारगेट्स में आपको पढ़ने के लिए दिया था. यू हैव टू स्टडी दैट चैप्टर. एंड ऑन गवर्नर there is a mini test, that link I have given in the comment section in the description box. After this class, give that test on governor. Okay, so we have already studied this topic. तो गवर्नर के बारे में पढ़ना यहाँ पर प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से हो जाता है इंपॉर्टेंट. एंड फ्रॉम मेंस परस्पेक्टिव, द रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी ऑफ अ गवर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ गवर्नर इज, you can say, appointed. Another important point is there are recent examples of tussle fight between governor and chief minister. केरला में देख लो, तमिलनाडु में देख लो, पंजाब में देख लो, दिल्ली में देख लो, एलजी और चीफ मिनिस्टर के बीच में टसल रहता है. सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू स्टडी. ओके, देन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, डिले इन सेंसस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेंसस?
You are collecting, you are analyzing the social data, the economic data of people in the nation. That is census. सेंसस के फीचर्स आप देखोगे सेंसस एक्ट में है, यूनियन लिस्ट में इट इज ऑल्सो मेंशन कि टू टाइप्स ऑफ इन्यूमरेशन आर डन, हाउसिंग सेंसस एंड पॉपुलेशन सेंसस. देन इसी से रिलेटेड आ जाता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसमें आपने देखा होगा असम में काफी उसको लेकर कंट्रोवर्सी रही है. व्हाट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर? टू काउंट द पॉपुलेशन. It is updated after the census. It is prepared under Citizenship Act 1955. And basically it registers not all the people in India but usual residents of the country. चाहे वो Indians हो चाहे वो foreigners हो, जो usual residents की category में आते हैं. So these are the three aspects that you need to understand about census. सो दिस वॉज योर क्लास फॉर टुडे. बाकी सारे आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं हमारे मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में. नाउ हियर यू हैव वन रोल टू प्ले. फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नर के ऊपर मिनी टेस्ट देना है आपको, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. एंड सेकेंडली यू हैव टू टेल मी अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट. लैंडस्लाइड मिटिगेशन एक्टिविटी एक कोई मेंशन करेंगे आप कमेंट सेक्शन में. हाउ इफ यू आर पोस्टेड इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट विल बी द वन important mitigation strategy you will develop to protect the people of that area. ओके, तो ये आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करना. दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एवरीवन. आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास. द नोट्स विल बी शेयर्ड ऑन टेलीग्राम, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप उसको रिवाइज करोगे, सिर्फ सेव करके भूल नहीं जाओगे. ठीक है? ऑल द बेस्ट एवरीवन.